So, beta, so what we discussed yesterday was okay. So today we are to discuss free radical substitution. Free radical substitution. A free radical substitution, this is one of the reaction of alkanes. ठीक है? तो जो reagents हैं, reagents का मतलब reactants for the reaction. Reagents में one of the reagents should be alkane. Alkane होना चाहिए या alkyl होना चाहिए. ठीक है? So free radical substitution happens with either alkane या alkyl. Number one. And number two, the reagent is halogen. Second reagent होगा halogen. So halogen में possibility है, it can be chlorine, can be bromine, can be iodine, can be acetylene as well. फिर जी yes, halogens are all diatomic. Okay, but we just started. Okay, and condition for the reaction conditions are UV light. Reaction will proceed if UV light is present, otherwise reaction will not proceed. This very reaction will proceed in the presence of UV light. Okay. I'm giving you the idea that how it proceeds. So which molecule is this one, beta? Which I'm writing with this red writing. This is methane. So suppose this methane is made to react with chlorine in the presence of UV light. Okay? ये UV light है. अच्छा, now what you predict, beta, what will happen? देखो, one of the H from methane and one of the Cl from chlorine will combine to make HCl, right, beta? So now notice that this carbon of methane is bond deficient. ठीक है? Bond deficient हो गया ना, इसका एक bond कम हो गया. तो yes, अब bond deficiency के लिए क्या होना चाहिए? One of the chlorine is left, so that chlorine will get attached here to make 4 bonds for the carbon. So this one is chloromethane. Chloromethane is formed. लेकिन if the chlorine excess में है ना, अगर chlorine excess में है तो फिर ये reaction है तो रुकेगा नहीं, फिर ये continue करेगा. ठीक है? अगर chlorine excess में है और ये UV light में present है, yes, but what will happen in the next stage? Next step पे क्या होगा? ये one of the H will pick one of the Cl to make HCl, and what you are left with, two hydrogens are attached, or 2 chlorine will get attached. Confusion? ये जो H remove हुआ है chloroethane से, इसकी जगह पे Cl will be attached. Clear? And then what happens कि अगर chlorine still excess में है तो रिएक्शन कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाए. ठीक है? अब बेटा आप क्या होगा स्टेज? क्या होगा? कंफ्यूजन है सर? ये ऊपर से आपने कैसे जी बेटा. तो वन ऑफ द H will pick one of the Cl to make HCl, or you will be left with this compound. ये होगा ट्राइक्लोरोमीथेन. ठीक है? और ये कंटिन्यू करेगा. अब ये लास्ट स्टेज होगा कि once again अगर इसको क्लोरीन से ट्रीट करें तो this hydrogen will react with this chlorine to make HCl again, और फिर ये chlorine will get attached there. One chlorine here, one chlorine here, one chlorine here, and one chlorine here. So this is tetrachloromethane. यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप हो. अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो the reaction will keep going on. Confusion, beta? We can write this very reaction like this as well. Okay, if we have CH4 or chlorine हो, UV light हो, chlorine excess में हो, तो what is the mono substituted product? Mono substituted का मतलब है कि एक chlorine substitute हो जाता है. You get CH3Cl plus HCl.
ऐसा बेटा? What will happen in the next stage? Cl2 or UV light में, yes. What is the next product? CH2, मतलब हाइड्रोजन कम होता रहेगा और Cl इंक्रीज होता रहेगा. CH2Cl and HCl. What happens in the third stage? We get CHCl3 plus HCl. And what happens last stage में? CCl4 plus HCl. ठीक है? So now my question is कि अगर 1 मोल मीथेन हो, right? 1 मोल मीथेन वो रिएक्ट करे एक्सेस ऑफ क्लोरीन से, reacts with excess of chlorine. ठीक है? So how many moles of HCl will form? How many moles HCl forms? 4 moles HCl will form. बेटा ये समझ रही 4 moles कैसे बने? Yes, total. जब CH4 react करे excess of chlorine में, तो all the hydrogens of this hydrocarbon will be replaced with chlorine, क्योंकि chlorine is in excess. तो बेटा आप काउंट करें कितने मोल हैं HCl? 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है. You have 4 moles. समझ आई बेटा? बेटा राइटिंग स्पीड में कर ली, जो whatever you are writing you need to write very quick. तो बेटा अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं कि if 1 मोल इथेन C2H6 अगर ये रिएक्ट करे with excess of chlorine, ठीक है, तो how many moles of HCl will form? शाबाश. क्यों बेटा? why 6 moles? हाइड्रोजन 6 है उसमें, ठीक है. how many moles HCl form? so 6 moles HCl will form. So you can receive these kind of questions. कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्या मोनो, इसका क्या मतलब है वैसे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. What it means beta? Mono substituted. For example, agar if this is the alkane C7 and H16, and if it is reacting with Br2, or reaction is happening in UV light, और आपको कह रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताएं. व्हाट इट मींस मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूट हो जाए. एक हाइड्रोजन, how many hydrogens you have? 16 hydrogens are present in this hydrocarbon. तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करें C7H15Br plus HBr, तो ये क्या हुआ? एक्चुअली मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. What is point? अच्छा, what will happen बेटा कि अगर ये, what is the name of this compound? This is cyclohexane ना? This is cyclohexane. और इसको अगर मैं क्लोरीन से ट्रीट करूं यूवी लाइट में, what will happen? अच्छा बेटा, cyclohexane में 6 कार्बन्स हैं, तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं कि नहीं है? Every carbon has 2 hydrogen atoms like this. ठीक है? Every carbon has 2 hydrogen atoms like this. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे होगा? Every carbon has 2 hydrogens. मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ये होगा कि यही साइक्लोहेक्सेन है, किसी भी एक जगह पे आप क्लोरीन अटैच कर दें और HCl बन जाएगा. राइट? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होगा? ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका अगर क्लोरीन से ट्रीट करें यूवी लाइट में, तो किसी एक जगह पे आप किसी भी एक पोजीशन पे आप क्लोरीन अटैच कर दें, HCl will form. So this is chlorocyclohexane. Chlorocyclohexane will be the product. ये बात समझ में आई? Any confusion बेटा?
if you have given this compound, जो कि है ethanoic acid, this is ethanoic acid, we are reacting it with chlorine in the presence of UV light, what product will form? हाँ, लेकिन किसका H हटेगा? आपने you have to focus alkyl, okay? This is alkyl group. Functional group में ये reaction नहीं होगा. Free radical substitution will happen either with alkane या with alkyl. ये methyl is there, which is alkyl. अब ये मोनो सब्स्टिट्यूशन इसमें इस तरह होगी कि वन ऑफ दी हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा and HCl is the product. Right? Clear है? So now this is chloroethanoic acid. Chloroethanoic acid. Confusion बेटा? ये बताएं what will happen here? CH3OH which is methanol. अगर इसको हम Br2 से रिएक्ट करें in the presence of UV light, जी बताइए. हाँ, इसमें जो एल्काइल है उस जगह पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी. This one OH. Nothing will happen to the functional group and HBr will form. So this is bromomethanol. Bromomethanol. Any confusion? Which functional group is this one? If I write CH3, C double bond O and H, which functional group is present here? This is aldehyde. This functional group is aldehyde. जी उस्मान बेटा बताएं, what product will it make? Mono substituted product क्या होगा? हाँ हाँ H. इधर HCl भी लगेगा ना? HCl will be the byproduct. So this is chloroethanol. Chloroethanol, right? So all these are, अगर आपको कहें ना कि mono substituted organic product हो, तो these are mono substituted organic products. These are mono substituted organic products, right? It's mono substituted organic product बताया हो, तो HCl HBr are not organic. बाकी जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहे हैं दे आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और मोनो. लेट्स से एथेनोइक एसिड एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन दे दें. सपोज दिस इज एथेनोइक एसिड CH3 C double bond O is ethanoic acid, and now chlorine is given in excess. Chlorine is in excess. जी बताएं, UV light, what will happen? तो पहले स्टेज में बेटा इट बिकम्स क्लोरोएथेनोइक एसिड. ठीक है, दिस इज क्लोरोएथेनोइक एसिड प्लस HCl बनेगा. फिर बिकॉज क्लोरीन एक्सेस में है तो क्लोरीन और फिर यूवी लाइट में फिर क्या बनेगा? डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड बनेगा. दिस इज डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड. और क्लोरीन एक्सेस में है तो फर्दर भी रिएक्शन होगा or you will get trichloroethanoic acid. You have Cl here, you have Cl here, you have whatever HCl भी बनेगा. और here this is, इसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना वो क्या है? ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड. ठीक है, मतलब अगर क्लोरीन एक्सिस में हो तो रिएक्शन चेन रिएक्शन होगा और वहां तक होगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन्स एल्केन के या एल्काइल के सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते. राइट? तो बताओ इसमें अगर 1 मोल एथेनोइक एसिड, ये 1 मोल एथेनोइक एसिड था, उसकी एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन हो बेटा, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl बने? मोल्स ऑफ HCl फॉर्म 3 मोल्स बने. ठीक है, 3 मोल्स HCl बने. उसकी वजह ये थी कि देयर वर 3 हाइड्रोजन एटम्स इन एल्काइल ग्रुप. ठीक हो गया? Now the next concept is also very important, okay? Or the concept is
Next concept is this one, beta. If you have propane, this is propane, right? And it is reacting with chlorine. Propane is made to react with chlorine. तो बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक होगा या एक से ज्यादा होंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, mono substituted product will be one or more than one. एक होगा, कौन सा? सी, इधर Cl लग जाए, इसका नेम बेटा क्या है? इसका नेम है क्लोरोप्रोपेन. दिस इज क्लोरोप्रोपेन. ये बात ठीक है, लेकिन बेटा ये भी तो बन सकता है ना, CH3, फिर दिस इज CH और Cl इज अटैच्ड हियर एंड देन दिस इज CH3. ये भी तो बन सकता है. इट्स पॉसिबल ना कि क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे अटैच हो जाए. तो दिस इज, पहला वाला है 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा वाला है 2 क्लोरोप्रोपेन, राइट? एंड ऑब्वियसली HCl बन जाएगा. और फिर बैलेंस करें तो बैलेंसिंग में हम फिर अकॉर्डिंगली इसको बैलेंस कर लेंगे. इधर मैं 2 लगा दूं, उधर 2 लगा दूं, तो इक्वेशन इज बैलेंस. इधर पे 2 लगा दूं. ओके. अच्छा देखो, ये जो प्रोडक्ट है, बैलेंसिंग की जगह हम ज्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं. ये जो प्रोडक्ट आपके पास आए, ये 6:2 में आएगा. ओके बेटा, बाद में इधर लिखे उधर लिखे, एक ही बात है. 6:2 कैसे बनी? वाई दिस इज 6:2? ये 1 क्लोरोप्रोपेन 6 और 2 क्लोरोप्रोपेन 2 रेशो में बनेगा. ये तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो 6:2 में बनेगा. So why the product will form like this? 6:2 में क्यों बनेगा? उसकी वजह यह है कि जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें देखें आप कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं. जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3 and 3 6 है. ठीक है, तो यहाँ इस फर्स्ट पोजीशन पे Cl अटैच करे या इस फर्स्ट पोजीशन पे Cl अटैच करे, 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा. तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है. और 2 पोजीशन पे बेटा कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. दैट इज व्हाई दैट इज 6:2. ये समझ आई रेशो की? हाँ, क्योंकि अगर इधर Cl अटैच होगा पहले पोजीशन पे तो इट विल बी 1 क्लोरो. यहाँ पे Cl अटैच होगा तो 1 क्लोरो. तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं 1 क्लोरो बनने के लिए? देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज. अब ये द क्वेश्चन इज, आई एम गिविंग यू दिस मॉलिक्यूल और आप मुझे बताएं CH3, CH2, CH2, CH3. This is butane. This is butane. I am reacting this butane with bromine in the presence of UV light. कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन करें. मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं बेटा? एक ही बन सकता है. वो कौन सा? 1 ब्रोमो, कहना चाह रहे हो? 1 ब्रोमो ब्यूटेन. तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं बन सकता. 3 ब्रोमो बन सकता है कि नहीं? 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, साथ में HBr बनेगा. और ये भी तो बनेगा ना 2 ब्रोमो. 2 ब्रोमो 2 पे अगर Br अटैच हो जाए 2 ब्रोमो ब्यूटेन भी बनेगा. क्या 3 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा? सॉरी, 3 ब्रोमो बन सकता है? नहीं, 3 ब्रोमो इसलिए नहीं बन सकता कि अगर यहां अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 3 ब्रोमो ब्यूटेन है, इसे आप 3 ब्रोमो ब्यूटेन समझ रहे हो, तो नंबरिंग आप इस तरफ से पे शुरू कर लोगे. तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 3 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं बन सकता. आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहां से Br करीब हो, राइट? तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सिर्फ 2 बनेंगे आपके पास. एक 1 ब्रोमो ब्यूटेन है
और दूसरा 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, सिर्फ बनेंगे दोनों, 1 ब्रोमो का भी चांस है, 2 ब्रोमो का भी चांस है, दोनों बनेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जब ब्रोमीन इधर को लाइट करेगा, ये हाँ, अगर एग्जामिनर पूछे कि आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताएं तो फिर ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट है, 1 पे भी अटैच होगा, 2 पे भी अटैच होगा। फिर ये ब्रोमीन जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो अटैचमेंट तो दोनों जगह पॉसिबल है। नहीं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मैंने ऊपर कहा हुआ, एक मोनो सब्स्टिट्यूट में कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक ब्रोमीन अगर सब्स्टिट्यूट करे एक हाइड्रोजन को, तो ये पॉसिबिलिटीज है। इसको अब हम बोलते हैं आइसोमेरिक प्रोडक्ट। क्यों बेटा आइसोमेरिक प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट जो है उसमें आइसोमर्स है, प्रोडक्ट में आइसोमर्स है। अब ये जो 1 ब्रोमो ब्यूटेन है और 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसकी रेशो क्या होगी? 1 ब्रोमो ब्यूटेन रेशो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, उसकी रेशो क्या होगी? 6:4। शाबाश। क्यों बेटा, कैसे पता चला 6:4 का? क्योंकि 1 पोजीशन पे अगर ब्रोमीन अटैच हो तो कितने हाइड्रोजन है बेटा? टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है, जिनमें से किसी एक हाइड्रोजन को Br रिप्लेस करे। और अगर 2 पोजीशन पे ब्रोमीन ने अटैच होना है, ये 2 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होगा, या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, तो फिर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन में किसी एक को रिप्लेस करे। तो 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो ब्यूटेन के जो फॉर्मेशन है उसमें रेशो 6:4 है, विच इज एक्चुअली 3:2। ये बात समझ में आई? कंफ्यूजन? अब देखो, अब मैं मैकेनिज्म सिखा रहा हूं आप लोगों को। किसका मैकेनिज्म? ये सीख लो कि कैसे है मैकेनिज्म। हम डिस्कस करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म सीख रहे हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा है प्रोपेगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स हैं। इसको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के 3 स्टेजेस हैं। अच्छा, जो पहला स्टेज है इनिशिएशन, उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा 2 फ्री रेडिकल्स में। एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसमें? 2 फ्री रेडिकल्स में। और फिर टर्मिनेशन में इसका रिवर्स होगा कि 2 फ्री रेडिकल्स से एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। राइट? देखो क्या होगा बेटा इनिशिएशन, एक मॉलिक्यूल से 2 फ्री रेडिकल बनेगी, इसी का रिवर्स कर दें तो दैट इज टर्मिनेशन। और प्रोपेगेशन में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल कंबाइन होगा एक फ्री रेडिकल से, और जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, और जो फ्री रेडिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल में। ये होगा प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में हमेशा एक मॉलिक्यूल एक फ्री रेडिकल से कंबाइन होगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसने कन्वर्ट होना किसमें? फ्री रेडिकल में। जो फ्री रेडिकल है उसने कन्वर्ट होना किसमें? मॉलिक्यूल में। इसको एब्जॉर्ब करें और सब। नाउ सपोज के रिएक्शन इज दिस वन, आई एम टेकिंग दिस रिएक्शन। If I react methane, let's start from the simple molecule with chlorine in the presence of UV light. And mono-substituted product, organic product is chloromethane and HCl. ठीक है? अब ये रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म ट्रेस करना, तो ज़ाहिर है मैकेनिज्म में फिर हमारे पास स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज इनिशिएशन है।
बस ये याद रखें कि इनिशिएशन हमेशा हैलोजन से शुरू होगी। किससे? हैलोजन में यू हैव क्लोरीन, तो कैन आई राइट क्लोरीन लाइक दिस? यहां इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में चला जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन में चला जाए, व्हाट विल फॉर्म? Cl free radical and Cl free radical। मैंने क्या बताया था? इस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या कहते हैं? कल हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड ब्रेकिंग लाइक दिस इज homolytic bond breaking। You remember we discussed that this is homolytic bond breaking and this is initiation। Why beta? Why this is initiation? Because one molecule converts into 2 free radicals। ऊपर मैंने यही बताया ना कि एक मॉलिक्यूल अगर 2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो, ये बताया ना, एक मॉलिक्यूल 2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो, दिस इज इनिशिएशन। तो हियर व्हाट हैपेंड कि a molecule convert into 2 free radicals which is initiation। फिर आएगा प्रोपेगेशन। क्या बेटा रूल बताया था प्रोपेगेशन का? कि एक मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करना है एक फ्री रेडिकल से। मॉलिक्यूल ये ले लें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मीथेन, ऊपर इक्वेशन में देखें, मीथेन इज द मॉलिक्यूल, फ्री रेडिकल इज Cl फ्री रेडिकल। अब रूल क्या है? मॉलिक्यूल ने किस में कन्वर्ट होना और फ्री रेडिकल ने किस में कन्वर्ट होना? तो देखो ये Cl फ्री रेडिकल है, ये किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा? ये HCl में कन्वर्ट होगा। ठीक है, Cl फ्री रेडिकल H कहां से लेगा? मीथेन से। तो मीथेन क्या बन जाएगा बेटा? मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। समझ आई? तो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल में। तो बेटा प्रोपेगेशन को हैबिट रखें ना कि 2 स्टेजेस में आप क्या करें। ये पहला स्टेज था प्रोपेगेशन का। फिर दूसरा जो स्टेज है ये नंबर 1 है, ठीक है। और नंबर 2 में आप ये ले लें कि ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, इसको अब किससे रिएक्ट करवाएं बेटा? देखो प्रोपेगेशन में एक फ्री रेडिकल है तो दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो हियर आई एम टेकिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, अब मिथाइल फ्री रेडिकल ये किस में कन्वर्ट होगा? फ्री रेडिकल ने किस में कन्वर्ट होना है? मॉलिक्यूल में। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा CH3Cl। और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखें कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इधर बन रहा है आपके पास। देखो ये जो CH3Cl है ये क्या है? दिस इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो ऊपर मेन इक्वेशन में। गॉट इट? अच्छा, एंड देन कम्स बेटा टर्मिनेशन। यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो प्रोपेगेशन में बना है, इसी को टर्मिनेशन में प्रिपेयर करना है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है CH3Cl, ये टर्मिनेशन में कैसे बनेगा बेटा? 2 फ्री रेडिकल, फिर आप कौन से लें? एक CH3 फ्री रेडिकल लें, एक Cl फ्री रेडिकल लें। ये जब मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा। अब ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, लेकिन फर्क ये है कि अब टर्मिनेशन स्टेप में बना है। दिस इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बट इट इज फॉर्म्ड इन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में बेटा ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये भी तो पॉसिबल है कि 2 CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है ना कि CH3 फ्री रेडिकल, क्योंकि बहुत से मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो फिर बेटा इससे क्या बनेगा? CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल से C2H6 which is organic बाय प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट इक्वेशन, मेन इक्वेशन का पार्ट नहीं है ना, वो बाय प्रोडक्ट कंसिडर होता है। तो ये बनेगा ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली जो रिएक्शन गिवन है उसका मैकेनिज्म हमने ट्रेस किया।